morning, students. Today I am going to summarize a lesson of book Hornbill for you. The very first lesson of book Hornbill. The title of the lesson is The Portrait of a Lady, and the writer is Khushwant Singh. Khushwant Singh was a very famous politician, writer, social worker of India, and he has written the lesson to show the relation between the grandparents and their grandchildren. Right? Let's start the summary because I don't want to make a long video. It's a complete lesson, very easy and very important lesson, so be careful. The lesson, The Portrait of a Lady, describes author Khushwant Singh's association with his grandmother and changes that occurred in their relationship. The chapter opens when the reminiscence of his grandmother, who was old, wrinkled, short and slightly bent. These are the characters of his grandmother. Old, wrinkled and slightly bent. Bent means little really stoop. His grandfather, whose portrait hung above the mantelpiece in the drawing room, wore a big turban and loose-fitting clothes. His white beard covered most of his chest, and he looked 100 years old. And it was difficult for Arthur to believe that his grandmother once had been young and pretty. He had seen her in the same condition for the past 20 years. She used to move in the house in spotless white clothes, with one hand resting on her waist and the other telling the beads of rosary. मीन्स इसका थोड़ा सा हिंदी बता दे कि खुशवंत सिंह जो थे उनका यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया उनकी मदर से और उनकी ग्रैंड मदर से, दादी से, और किस तरीके से वो रिलेशन चेंज होता है। क्योंकि खुशवंत सिंह के फादर जो है सिटी चले आए थे, फिर उनकी मदर आ गई वहां पर, जब वो सेटल डाउन हो गए। खुशवंत सिंह तब भी दादी के साथ ही थे गांव में। उसने कहा कि उसकी दादी जो थी वो रिंकल्ड थी, चेहरे में झुर्रियां पड़ी हुई थी, शॉर्ट थी, छोटी हाइट की थी, बेंट थोड़ा झुकी हुई थी, और जब से देख रहा है अपनी दादी को वो ऐसे ही देख रहा है, उनमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल फिक्स क्रिएचर है और ऐसे ही रहने वाली है। उसके दादाजी का एक मेंटल पीस जो है एक फ्रेम टंगा हुआ था रूम में, और वो दादाजी की जो चेस्ट का पार्ट था मैक्सिमम वो उनकी दाढ़ी से कवर होता था। टर्बन पहने हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्बन पहने हुए थे, मोस्टेक्स थे वहां पर उनके, और ऐसा नहीं लगता था कि दादाजी इस तरह के व्यक्ति हों कि जिनकी जो शादी हुई हो, उनके चिल्ड्रन हों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हों। इस तरीके से उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ग्रैंडफादर को और ग्रैंड मदर को भी। और ग्रैंड मदर हमेशा एक हाथ से को अपने कमर में रख करके थोड़ा झुक के चलती थी, और एक हाथ में रोजरी बीड्स हुआ करती थी, एक माला जिसको वो जो है आप जानते हैं माला जो की गुड़िया को चलाया करती थी, कोई मंत्र मन में बुदबुदाया करती थी। ये इसने एक्सप्लेनेशन दिया अपनी ग्रैंड मदर का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट, राइट। Arthur and his grandmother were very good friends, right? And after his parents left for city, both were constantly together. She used to do his every work for waking him up to accompany him to the school. The reason behind going to school was that it was near a temple, and while the author received the lessons, she sat inside reading the scriptures. After they had finished their tasks, both would walk back. On the way back home, they were followed by the village dogs, which fought and growled for the chapati they threw to them. Stale chapatis, stale breads, right?
मीन्स ग्रैंड मदर जो थी बहुत केयर करती थी खुशवंत सिंह का, उसको सुबह जगाना, तैयार करना, और जब भी तैयार करती थी वो मंत्र बोलती रहती थी, राइट, ताकि खुशवंत सिंह को भी याद हो सके। टेम्पल के पास ही स्कूल था, ग्रैंड मदर लेके जाती थी। स्टील चपातियां उसको सुबह खाने को देती थी, बासी रोटी, उसमें घी लगा करके, बुकनू लगा करके देती थी, बहुत अच्छी उसको लगती थी, और साथ ले जाती थी। और टेम्पल में पूरे टाइम बैठती थी उसकी ग्रैंड मदर, और खुशवंत सिंह पढ़ते थे वहां पर। जब वहां से पढ़ के आते थे दोनों लोग, तो कुछ बची हुई स्टील चपातियां होती थी, बासी रोटी, और उनको खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर विलेज के डॉग्स को फेंका करती थी। तो वो एक जो है भौंकते हुए उनका पीछा करते हुए आते थे, गुर्राते हुए एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे कुत्तों के ऊपर गुर्राते हुए आते थे चपाती लेने के लिए। और ये उनका डेली रूटीन था इस तरीके से। और ये तब से चल रहा था जब से खुशवंत सिंह बड़े हुए थे बचपन में, और उनके फादर ने उनको छोड़ दिया था, फादर मदर ने अपनी माँ के पास, क्योंकि वो लोग सिटी में सेटल होना चाह रहे थे, राइट। A turning point came in their lives when they were called to live in the city. Although both had the same room, it's important, they both had the same room, but the distance between them widened, right? Distance बढ़ती चली गई। खुशवंत सिंह को शहर बुला लिया गया, उनकी ग्रैंड मदर को भी शहर बुला लिया गया, दोनों एक ही रूम में रह रहे थे। लेकिन अब वो गांव वाली बात नहीं थी, क्योंकि गांव में गार्जियन कौन था? ग्रैंड मदर। यहाँ पर गार्जियन कौन हो गया? सिटी में आने के बाद उसके पेरेंट्स। अब दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आने लगी, वाइडेंड होने लगा, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। द रीजन वॉज द ऑथर्स चेंजिंग ऑफ स्कूल एंड हिज कम्यूटिंग बाई बस, राइट। अब वो बस के थ्रू आउट स्कूल जा रहा था, राइट। स्कूल जाने लगा तो दादी स्कूल तक छोड़ने भी नहीं जा रही थी, डिस्टेंस क्रिएट हो रही थी। Furthermore, there were no dogs in the streets, so she started feeding sparrows in the courtyard of the house. With the passage of time, the communication between them lessened. She could not even help him in studies, as he studied in an English medium school, and the English words as well as lessons were beyond her understanding. She was also dissatisfied with the studies taught, as they were teaching of science and music, which were not divine, according to her grandmother. Nothing related to God was taught in the school, which made her distressed and unhappy. You can say कि जो थी अब वो बस से जा रहा था, और अब वो मदद भी नहीं कर पाती थी वहां पर अपने खुशवंत सिंह को पढ़ाने में, क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था और इंग्लिश लेसन्स पढ़ रहा था, साइंस के बारे में पढ़ रहा था, म्यूजिक के बारे में पढ़ रहा था। और म्यूजिक के बारे में पढ़ाई बिल्कुल भी ग्रैंड मदर को पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि म्यूजिक अच्छे लोग, घर के लोग नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ा ट्रैश है, ये जो है गली में और भिखारियों के द्वारा गाया जाने वाला, या जो है प्रोस्टिट्यूट जो करती हैं उस प्रोफेशन में है, उनके लिए ये चीज बनी हुई है। तो वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं था ग्रैंड मदर को कि वो म्यूजिक सीखे। तब से और डिस्टेंस क्रिएट हो गई दोनों के बीच में, और इंग्लिश वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते थे, तो ना लेसन्स वो पढ़ा पा रही थी, ना ही उसको जो है कोई चैप्टर पढ़ा पा रही थी। और दूसरे दुखी थी कि कोई भी डिवाइन, कोई भी गॉड से रिलेटेड चीजें अब स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जा रही थी इस स्कूल में, जबकि वहां पर गांव में गॉड से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती थी। तो लगातार दोनों के बीच के रिलेशन खराब हो रहा था, जो दिख नहीं रहा था। ग्रैंड मदर लड़ नहीं रही थी, लेकिन बोलना बंद कर दिया था। और अधिकतर अपनी जो है, अब यहाँ पर डॉग्स नहीं थी, स्ट्रीट के डॉग्स नहीं थे, तो इन्होंने स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया। अपनी हॉबी को उन्होंने जो है जारी रखा, और ये उनका बेस्ट टाइम पीरियड था जब वो स्पैरोज को खिलाती थी आधे घंटे। दिन भर वो रोजरी बीट्स चलाती थी, अपने मालिक गुड़िया को वो करती रहती थी। और कहता है मैंने कभी देखा ही नहीं कि उनका मुंह कभी बंद हुआ हो, वो हमेशा मुंह में मंत्र का जाप करती ही रहती थी, चैटिंग द, हमेशा चैंटिंग चलती रहती थी उनके मुंह में, ठीक है। Hence he started going to university. खुशवंत सिंह, he was given a separate room which was the only common link between them. अब एक कॉमन लिंक था उनका, एक रूम। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा तो क्या हुआ, वो लिंक भी ब्रेक हो गया। ग्रैंड मदर अलग रूम में हो गई और खुशवंत सिंह अलग रूम में। Grandmother accepted her loneliness and began to spend time spinning the veil
and reciting prayers. Right. Meanwhile, in the afternoon, she used to feed sparrows, which gave her immense happiness. Birds became her companions, which perched on her legs, shoulders, important question, and sometimes on her head. When Arthur decided to go abroad for further studies, he thought his grandmother would become sentimental, but nothing like that happened. Nothing happened like that. Instead, she became to leave him at the railway station, but didn't utter a single word. She kissed his forehead, Khuswant Singh's forehead, and that was the last sign of physical contact between them. Right? यूनिवर्सिटी में पहुंचे जब खुशवंत सिंह, तो उन लोगों का जो एक लिंक था रूम का वो भी अलग हो गया। खुशवंत सिंह को अलग रूम दे दिया क्या, और ग्रैंड मदर को अलग रूम दे दिया गया। ग्रैंड मदर अलग रहने लगी और ग्रैंड मदर पूरी तरीके से अपनी लोनलीनेस को एडॉप्ट कर लिया उन्होंने। वो अपनी रोजरी बीट्स के साथ ही बिजी रहती थी। स्पाइनिंग व्हील्स, एक व्हील को जो है चरखा काटने में अपने आप को बिजी रखा करती थी हमेशा। और दोपहर के समय जब वो खाली होती थी तो आधे घंटे अप्रोक्सीमेटली वो स्पैरोज को ब्रेड्स के टुकड़े खिलाती थी, और स्पैरोज सैकड़ों की संख्या में आती थी, उनके लेग्स में बैठती थी, उनके शोल्डर में, इवन कुछ तो हेड में बैठ जाती थी। और यही वो उनका दिन का सबसे खुशनुमा समय होता था। फ्रेंडली ट्रीट होता था स्पैरोज के साथ, और बहुत चिरपिंग करती थी, बहुत चहचाती थी वो वहां पर स्पैरोज। और उनकी ग्रैंड मदर परमानेंट उनको खिलाने की कोशिश करती थी और खुशी से। और फिर डिसाइड हुआ खुशवंत सिंह फॉरेन जाने का, कि फॉरेन में फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे। और खुशवंत सिंह सोच रहे थे कि ग्रैंड मदर सेंटिमेंटल हो जाएंगी, बट एक सिंगल ड्रॉप उनका टीयर जो है रोल डाउन नहीं हुआ उनकी आईज से। एयरपोर्ट तक छोड़ने गई सियाप और फोरहेड में किस किया खुशवंत सिंह को। और ये उनका जो है लास्ट जो है इम्प्रेशन था, फिजिकल कांटेक्ट था खुशवंत सिंह के साथ। वो मॉइस्ट जो इम्प्रेशन था, गीला जो है किस लेने में गीलापन आ जाता है, वो उसके माथे में लगा था। और ये एहसास दिला रहा था उनके फिजिकल कांटेक्ट का। बहुत सालों बाद फिजिकल कांटेक्ट हुआ था और खुशवंत सिंह को लग रहा था कि ये लास्ट कांटेक्ट है, शायद दोबारा वो देख भी ना पाए अपनी ग्रैंड मदर को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एज की हो गई थी, बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी। लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ, वो अब्रॉड चला गया 4 इयर्स के लिए, और बट लौटा 5 इयर्स के लिए अब्रॉड गया, लौट के आया वहां से। फिर क्या हुआ? On his return after 5 years, he was received by her. 5 years he did it. He was received by her at the station. She went to receive him at the station, and she didn't look a day older. वो स्टिल उतने साल की दिख रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी वो ओल्ड हुई हैं। That time also she didn't speak a single word. तब भी छोड़ते टाइम कुछ एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोला, टीयर्स रोल डाउन नहीं हुए। यहां पर भी उन्होंने सिंगल वर्ड नहीं बोला। शी क्लैप्ड हिम बट वाज रिसाइटिंग प्रेयर्स। द डे स्पेंट एज यूजुअल फीडिंग स्पैरोज, व्हिच वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ। इन द इवनिंग देयर वाज अ चेंज इन हर बिहेवियर। शी कलेक्टेड द नेबरहुड women and started to sing about the homecoming of warriors as an old drum. That was the first time when she did not pray. Next morning she fell ill and told that her end was near. She stopped talking to anyone, lay peacefully in bed telling her prayers, when suddenly her lips stopped moving and rosary fell from her fingers. आने के बाद 5 साल बाद आया लौट करके, दादी माँ अभी भी स्टिल उतने साल की दिख रही थी। कोई चेंज नहीं दिख रहा था उनके जो है लाइफ में, कोई चेंज नहीं दिख रहा था। मतलब वो एक दिन भी अभी बूढ़ी नहीं लग रही थी, जितना छोड़ के गया था उतना ही बूढ़ी लग रही थी। और वहां भी स्टेशन में कुछ नहीं बोली, वापस आई और उनका स्पैरोज के साथ सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट गुजरा। उनकी प्रे चल रही थी, रोजरी बीट्स कर रही थी। शाम को अचानक उनके बिहेवियर में चेंज आया। उन्होंने आस पड़ोस की सारी महिलाओं को बुलाया और एक ढोलक के साथ, जैसे एक योद्धा कोई लौट के आता है फॉरेन से, उसी तरीके से, और उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उस तरह के गीत गाने लगी। काफी देर ढोलक बजाती रही, थक रही थी। घर वालों ने मना किया पड़ोस की, आप थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया।
और ढोलक बजाती रही। और ये उस समय था जब उन्होंने प्रेयर बंद की अपनी, और उसके बाद जब लेटी थोड़ी उनकी तबीयत खराब हुई, सुबह टाइम जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनका एंड आ चुका है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग बीमार उनका एंड आ चुका है, उनका प्रेयर उस टाइम के लिए रुका, ठीक है। फिर उन्होंने प्रेयर थोड़ी देर के बाद शुरू कर दी और कुछ ही समय बाद वो रोजरी बीड्स, वो माला उनके हाथ से गिर गई और उनका लिप्स जो है स्टॉप्ड हो गए। पूरे टाइम प्रे करने वाली महिला, ठीक है, का मुंह स्टॉप्ड हो गया, लिप्स स्टॉप हो गए और रोजरी बीड्स गिर पड़ी, अर्थात वो मर चुकी। लास्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, दिखाते हैं। द फैमिली मेंबर्स वेंट टू हर रूम टू टेक हर बॉडी कवर्ड इन रेड श्राउड फॉर क्रिमेशन व्हेन दे स्टॉप्ड halfway. To their surprise, they saw thousands of sparrows in the veranda. There was no chirping. Arthur's mother fetched some bread for them and broke it into little crumbs. But sparrows took no notice, and when the corpse was taken off, and the corpse of the grandmother was taken off, they flew away quietly. This way, the birds expressed their sorrow for their long-time companions. Right? जब सुबह टाइम उनकी डेड बॉडी को जमीन में रखा गया, रेड श्राउड पहनाया गया, उनके ऊपर ओढ़ाया गया एक कफन और सिंदूर लाल रंग का डाला गया। जब जैसे ही डेड बॉडी लेके जा रहे थे तो बरामदा के आधे रास्ते में रुकावट आ गई। बहुत सारे हजारों स्पैरोज जो है, सैकड़ों स्पैरोज आकर के, जो बर्ड थी स्पैरो बर्ड, वो आकर के वहां पर उनका रास्ता रोक लिया स्पैरोज ने। तभी जो खुशवंत सिंह की माँ थी वो अंदर गई, ब्रेड के टुकड़े, क्योंकि सोचा उन्होंने कि ब्रेड के टुकड़े का टाइम हो गया, लेके आई और छोटे छोटे टुकड़े में बिखेर दिया बरामदा में। लेकिन उनमें से एक बर्ड ने भी, सिंगल बर्ड ने भी एक सिंगल छोटा टुकड़ा भी नहीं उठाया। देखिए रिलेशन, कितना गजब रिलेशन दिखाया गया कि वो भी स्पैरोज को भी सारो था अपने ओल्ड कंपेनियंस के लिए। जैसे वो लोग डेड बॉडी लेके घर से निकले, सारे स्पैरोज जो इतनी चहचहाती थी उस आधे एक घंटे में जब उनका टाइम आता था, खेलती थी, उछलती थी, उस दिन बिना चहचहाए, बिना आवाज के चुपचाप वहां से उड़ करके चली गई। उन्होंने भी अपने दुख को एक्सप्रेस किया। इस तरीके से रिलेशन खत्म होता है। एक ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंडसन के बीच का रिलेशन दिखाता है। 3 फेज दिखाएगा यहाँ पर उनके रिलेशन के। एक जब वो गांव के थे, 3 phases, राइट। when खुशवंत सिंह was child, when खुशवंत सिंह was in adolescence, when खुशवंत सिंह was adult, जब अब्रॉड गए वो दिखाया गया। जब सिटी में आए, एक वो फेज था, एक गांव विलेज का फेज था, एक सिटी का फेज था, एक अब्रॉड जाने का फेज था। 3 phases दिखाए गए यहाँ पर और रिलेशन दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने का और ज्यादा मेरा मन हो, मैं इंस्पायर हो सकूं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।